آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے پرفیوم کا بزنس آج شروع کریں گے اور کل جو ہے آپ کے ہزاروں آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے آپ کو کیا کیا نہیں کرنا جب آپ پرفیوم کا کام شروع کریں گے، کیونکہ میں اس سفر سے ابھی ریسنٹلی گزرا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائی جائیں جو شاید کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ اس راستے میں شاپیفائی بھی آتا ہے، اس راستے میں میٹا بھی آتا ہے، اس راستے میں کوریئر کمپنی بھی آتی ہے۔ یہ جو ہم سیریز بنا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو رائٹ اسٹارٹنگ فرام دا سلیکشن آف دا برانڈ اور کریشن آف دا برانڈ ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ آپ کو کسٹمر سے پیسے ریسیو ہونے ہیں۔ اب آج کل سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے پرفیوم کا بزنس آج شروع کریں گے اور کل جو ہے آپ کے ہزاروں آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک کامیاب پرفیوم کا برانڈ آپ کھڑا کر لیں گے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ میں اس سفر سے ابھی ریسنٹلی گزرا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائی جائیں جو شاید کوئی بھی نہیں بتا رہا، اور یہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آج جا کے بوٹلز لے آئیں گے اور اس میں ایتھنال اور آئل ملا کے اور آپ ایک خوشبو بنا لیں گے اور اس کے اوپر لیبل لگا کے کل جو ہے آپ کے سینکڑوں آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرفیوم کا برانڈ بنانا چاہتے ہیں اور میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ وہ ساری چیزیں جو میں نے سیکھی اس سفر میں وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ نہ تو یہ کوئی کورس ہے، نہ ہی یہ کوئی کسی قسم کا کوئی لرننگ کا پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ پرفیوم کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرفیوم کی سمجھ ہونی ضروری ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی 10 15 20 سالوں سے پرفیوم خریدتے آ رہے ہوں اور آپ نے بہت سارے دنیا کے مختلف پرفیوم ٹرائی کیے ہوں اور آپ کو نوٹس اکارڈز اور ان چیزوں کا ساروں کا پتہ ہو۔ یہ اگر آپ کے پاس نالج ہو تو یہ اچھی بات ہے، اور لیکن اگر نہیں بھی ہے تو یہ ہم سیکھیں گے اور یہ ہم جلدی سیکھیں گے، اور ہم آپ کو کوشش یہ کریں گے کہ ہم آپ کو یہ ساری انفارمیشن اس طرح سکھا دیں جس طرح آپ ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ انلیس آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، آپ کو ہم ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ پرفیوم کا بزنس شروع کریں۔ میں کچھ تھوڑی سی بات اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں کوئی 25-30 سال سے، بہت عرصے سے، جب سے مجھے یاد پڑتا ہے، میں پرفیوم کا اور خوشبو کا شوقین رہا ہوں۔ دنیا میں جہاں بھی کہیں میں گیا، وہ فار ایسٹ ہو، مڈل ایسٹ ہو، ویسٹرن سائڈ ہو، میں نے کوشش یہ کی کہ میرے پاس اگر تھوڑے سے بھی پیسوں کی گنجائش نکلتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی پرفیوم خرید لوں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے پاس ابھی شاید پرفیوم رکھنے کی بھی جگہ نہیں بچی۔ لیکن اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی۔ اسی سلسلے میں آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میں یوسف بھائی کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آپ انسٹاگرام پہ یا گوگل پہ یوسف بھائی اور پرفیوم لکھ کے اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، بلکہ انفیکٹ کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کون سا پرفیوم میں بنا کے دوں۔ ہی از اے پرفیومسٹ، ہی از اے بریلینٹ پرفیومسٹ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں شاید ان کو کسی مہنگے برانڈ کے، مہنگے لیبل کے پرفیوم کی خواہش کروں گا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ مجھے وہ خوشبو چاہیے جو بالکل ایک نیو بورن بیبی میں سے، ایک نوزائیدہ بچے میں سے آتی ہے، بڑی سویٹ سی، بڑی خوبصورت سی خوشبو ہوتی ہے۔ تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا احمد، کچھ خوشبوئیں جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اس زمین پہ تو نہیں بنا سکتے کم از کم۔ تو یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ خوشبو ایک ایسی ڈیوائن چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کو سمجھنا، اس سے پیار کرنا، یہ کام شروع کرنے کے لیے بہت ضروری۔ اچھا، جب میں نے بہت عرصہ پہلے اپنا پرفیوم کا برانڈ شروع کرنے کا سوچا تو اس وقت بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے کام ہوئے جو کہ میں اب آ کے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے ان پہ پیسہ اور وقت ضائع کیا، اور بہت سارے ایسی کام، ایسی چیزیں بھی ہوئیں جو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سیکھی وہ مجھے آپ لوگوں کو ابھی سے بتانی چاہیے تاکہ آپ اس کے اوپر وقت اور اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ تو اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ مین ٹاپک شروع کرنے سے پہلے چند چھوٹی چھوٹی باتیں۔ پہلی بات، جب آپ پرفیوم کا بزنس شروع کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک باٹل آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی پیکیجنگ آتی ہے، پھر آپ
आपके जहन में ब्रांड नेम आता है, फिर उसमें कैसी खुशबू होगी, उसका रंग क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, फिर आप उसको बेचेंगे कैसे। इस रास्ते में शॉपिफाई भी आता है, इस रास्ते में मेटा भी आता है, इस रास्ते में कोरियर कंपनी भी आती है, फिर आपने पैसे भी लेने हैं तो पेमेंट गेटवे भी आता है। ये सारी एक लंबी लिस्ट जो है, ये सारी की सारी मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ एजेंसी से, मुख्तलिफ डिजिटल एजेंसी से रब्ता करके, और बहुत सारे जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनके साथ मुख्तलिफ औकात में काम करके मैंने ये सीखा कि ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप ई कॉमर्स में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर आपको ये चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। आपके लिए बेहतर है कि आप ये चीज़ें सीखें। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये पता नहीं कितनी टेक्निकल चीज़ें होंगी, कितनी अंग्रेज़ी होगी इनमें, कितना मुश्किल होगा, हम कैसे करेंगे। यकीन कीजिए ये बिल्कुल मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपको ये इस तरह सिखा दें कि जब आप ये सीरीज़ कंप्लीट करें तो उस वक्त आप खुद भी एक छोटी मोटी सी डिजिटल एजेंसी। तो चलें अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात, जब आपने परफ्यूम का बिजनेस शुरू करना है तो आपको ये देखना है कि आप किस मार्केट को कैटर करना चाहते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि आपने किस मार्केट को कैटर करना है तो फिर आपके जहन में अगला सवाल ये आना चाहिए कि कौन सी मार्केट। इसका क्या मतलब है? सब लोग ही परफ्यूम लगाते हैं, सब लोग ही परफ्यूम पसंद करते हैं ज़्यादातर। चलें हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लेबल या बड़ा ब्रांड का परफ्यूम या उसकी कॉपी या उसका इंप्रेशन लगाना पसंद करते हैं। आप उनको लाख भले अच्छी खुशबू दे दें, लेकिन वो चाहेंगे कि मैं किसी न किसी बड़े ब्रांड की कॉपी ही लगाऊं, ताकि जब मैंने खुशबू लगाई हो तो लोग खुद ब खुद पहचाने कि अच्छा आपने फलाने ब्रांड की खुशबू लगाई हुई है। अच्छा, दूसरी वो कैटेगरी है जिनको इंटेंस खुशबुएं पसंद होती हैं। तीसरी वो कैटेगरी है जिनको फ्लोरल खुशबुएं पसंद होती है। चौथी वो कैटेगरी है जिनको ऊदी, ओरिएंटल, अरेबियन खुशबुएं पसंद होती हैं। कुछ ऐसी नीश है जिसको अच्छी पैकेजिंग चाहिए, कुछ ऐसी नीश है जिनको बॉटल बहुत खूबसूरत चाहिए, और एक ऐसी नीश भी मौजूद है जिनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि आपकी बॉटल कैसी है, आपकी पैकेजिंग कैसी है। उनको इस बात से गर्ज है कि वो पैसे अगर खुशबू के दे रहे हैं तो उनको खुशबू अच्छी मिलनी चाहिए। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि इनमें से कौन सी मार्केट में आपने जाना है, जब हम इतनी सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो फिर आपके जहन में अगला सवाल जो आएगा कि इतनी सेगमेंटेशन जब करेंगे तो फिर हमारी तो सेल्स कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये सारे सेगमेंट्स बहुत बड़े हैं, और यकीन कीजिए आप इस सेगमेंट की डिमांड शायद पूरी भी नहीं कर सकते। इनमें से किसी एक सेगमेंट की डिमांड आप शायद पूरी नहीं कर सकते। जब आपने अपना सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद अगला मरहला आता है कि आपने ब्रांड नेम क्या रखना है। ब्रांड नेम आपको जो पसंद है वो रखिए, उसके ऊपर मैं आपको कोई गाइडलाइन नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि ब्रांड नेम सादा रखें, सिंपल रखें, ऐसा रखें जो कि लोगों की ज़बान पे आ जाए, लोगों को अदा करना आसान हो, लोगों को समझ आ जाए। जब हम डिमांड की बात करें तो पाकिस्तान में परफ्यूम की डिमांड इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने में बहुत सारे फैक्टर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें जैसे सबसे बड़ा रोल तो जो है वो टिकटॉक है, रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं। आपकी अवेयरनेस है, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, आपको बहुत सारे ब्रांड्स का पता चल रहा है, आपको बहुत सारी खुशबुओं का पता चल रहा है, तो ये सब मिल के एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात, परफ्यूम जो कि पहले ए क्लास, ए सेगमेंट, ए प्लस सेगमेंट की प्रोडक्ट हुआ करती थी, अब वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में भी चली गई है। पहले जो लोग परफ्यूम नहीं खरीदते थे अब वो परफ्यूम खरीदने लग गए हैं। तो ये मार्केट एक तो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है और साथ साथ बढ़ती भी जा रही है। फिर त्योहारों के ऊपर एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होती है, जैसे ईद है, शादियां हैं, रमज़ान है और त्यौहार हैं, उनके ऊपर परफ्यूम लगाना एक तरह से ज़रूरत बन गया। उसके साथ साथ तोहफा देने के लिए परफ्यूम से बेहतर तोहफा कोई हो नहीं सकता। तो परफ्यूम जो है इसकी मार्केट पाकिस्तान में है और तेज़ी से बढ़ भी रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप परफ्यूम का काम आपको शुरू करना चाहिए तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन उसमें चंद जो अहम गुजारिशात हैं वो आप ज़रूर जहन में रख लें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप एक अच्छा, स्टेबल और लॉन्ग टर्म परफ्यूम का ब्रांड खड़ा कर सकेंगे। अच्छा, जहाँ तक ब्रांड की बात है, ब्रांड में अगर आप कोशिश करें तो आप एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो लोगों के साथ एसोसिएट कर सके,
जिसके साथ लोग अपने आप को जोड़ सकें, जिसको याद रख सकें, जिसके लॉयल कस्टमर बन सकें और जिसकी स्टेटमेंट देना उनके लिए आसान हो और अच्छा हो। बहुत सारे लोग शायद अब भी ये सोच रहे हैं कि अगर आपने परफ्यूम का काम शुरू करना है तो आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से, एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट से और एक छोटी इन्वेस्टमेंट से भी परफ्यूम का काम शुरू कर सकते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आप किस तरह की खुशबू बनाते हैं, आप किस तरह की पैकेजिंग बनाते हैं और आप किस मार्केट को टारगेट करते हैं। इसमें तो खैर कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आपको परफ्यूम का बिजनेस शुरू करना है तो सोशल मीडिया से ज़्यादा इस वक्त पावरफुल टूल कोई भी अवेलेबल नहीं है। आप अगर कम वक्त में अपनी सेल्स एक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत मुनासिब, बहुत ताकतवर और बहुत अच्छा टूल आपके लिए अवेलेबल है जिस पे आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको दोबारा से दोहरा दूं कि अगर आप परफ्यूम का ब्रांड शुरू करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए और उसके सिलसिले में आपको जिस तरह की, जिस किस्म की रहनुमाई दरकार है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। हम वो पढ़ेंगे भी, हम उसका जवाब भी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हम आपको गाइड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते की तरफ लेके आ सकते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ब्रांड की तरफ ले जाए, हम वहाँ पे आपकी मदद ज़रूर करें। उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चंद बातें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप अपनी ब्रांड खुद क्रिएट करें। आप कोशिश करें अपना लोगो, अपना नाम खुद बनाएं। आप कोशिश करें आप जो उसकी बॉटल्स हैं, जो पैकेजिंग है वो सादा रखें। आप परफ्यूम जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप मेहनत करें, अच्छी खुशबू अपने कस्टमर्स को दें, क्योंकि अगर आप अच्छी पैकेजिंग देंगे तो शायद आपका कस्टमर आपसे एक दफ़ा तो ले सकता है, लेकिन दूसरी दफ़ा आपसे वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू की वजह से लेगा। उसके अलावा जो अगली इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप सोशल मीडिया की कम से कम, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कम से कम समझ बूझ खुद में पैदा करें और उसको खुद चलाने की कोशिश करें। वही पैसे जो आपके किसी और ने लगाने हैं और ज़ाया करने हैं, वो कोशिश कीजिए कि वो आप खुद ज़ाया करें। उससे अगर और कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपको ज़ाया करने का तरीका आ जाएगा और अगली दफ़ा आप ज़ाया नहीं करेंगे, अगली दफ़ा आप उनसे फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ जहाँ उस सिलसिले में भी आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ये जो हम सीरीज बना रहे हैं उसमें हम आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड और क्रिएशन ऑफ द ब्रांड टू द पॉइंट जहाँ पे आपको कस्टमर से पैसे रिसीव होने हैं। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। आपने ब्रांड बनाना है, आपने पैकेजिंग बनानी है, आपने बॉटल बनानी है, आपने खुशबू बनानी है, उसके बाद आपने शॉपिफाई के ऊपर अपनी साइट बनानी है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपनी साइट बनानी है। उसके बाद आपने उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आपने क्रिएटिव्स बनाने हैं, एड्स बनाने हैं साइट से। उसके बाद आपकी साइट से उसकी सेल्स होनी है, वो सेल्स आपकी कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगी कैसे, वहां से पैसे कैसे आएंगे, कौन सी कोरियर कंपनी से आपको काम करना है, कौन सी चीज़ें आपको आसानी से हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें आपको मुश्किल पैदा करेंगी, ये सारी चीज़ें हम एक एपिसोड में हम कवर करते जाएंगे। और अगली एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे, इस एपिसोड में हमने आपको ये बताया कि आपको क्या क्या करना है। अगली एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे आपको क्या क्या नहीं करना जब आप परफ्यूम का काम शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।